Now, I would like to invite our first speaker for the day, Professor Prabhat Ranjan. He is the Executive Director of Technology Information Forecasting and Assessment Council. He and his teammates have recently drafted the document Technological Vision 2035, which was released by our Honorable Prime Minister Narendra Modi. He has done his schooling from Netarhat Residential School, Netarhat. He studied physics in IIT Kharagpur and Delhi University. He did his PhD from University of California, Berkeley. Immediately after completing his doctorate, he decided to come back to India to serve his country. He was at the key position involved in setting up the only two nuclear fusion reactions in the country. He has been known for his technological invention in the field of rehabilitation of disabled persons. I would like to invite Professor Prabhat Ranjan to talk on future of human species. Thank you very much, because Professor Srivastava could not make time, so I get this opportunity to speak before him. I'm sure he'll be joining shortly. Future of human species. We're in a very particular time where there are things happening we're not seeing. About a month back, I had organized an event in Delhi on this particular topic. How technology is advancing and how it's going to impact the existence of human species itself. So this is the topic which talks about impact of exponential technologies on future of human species. If you look at human species, there are 3-4 different things happening. One is the advances in medical science and technology combined together is making it possible that longevity of human being can go up many folds. It may be possible to replace each part of our body with a new device. We're already doing it, we don't realize it. For example, we have pacemakers and many other things. On the other side, what is happening is that we're starting to create, for example, I saw an embryo of mouse being created in the lab without any involvement of the species, mouse species. Robotics is advancing in a big way. So there are 3-4 different things happening, and all of them are very interesting in their own way. I'm going to focus on the exponential technology. Let me first define what are exponential technologies. So the technologies with innovations, there is a Moore's law that we use in computer science. Innovations which are accelerating faster than Moore's law are called exponential technologies. For example, one of them is artificial intelligence. We have robotics. There are 3D printers. For example, 3D printing जैसे होता है जिसमें हम बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे ये ग्लास है, ये बॉटल है. प्रिंटर, नॉर्मल प्रिंटर में कागज पर प्रिंट करते हैं, उसमें हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. उसे बॉडी ऑर्गन्स भी प्रिंट होने लगे. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जैसे वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी है, या बात जो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन है 6Ds बोलते हैं. ये 6D क्या है जो कि डिफाइन करते हैं. एक तो है कि इसमें जो भी चीज डिजिटाइज हो जाती है वो बहुत डिसेप्टिव होती है. जैसे डिजिटल कैमरा किसने इन्वेंट किया? कोडक ने. लेकिन कोडक आउट ऑफ बिजनेस चला गया क्योंकि उसने इन्वेंट किया, लेकिन उसको ये नहीं पता था इसका बिजनेस पोटेंशियल क्या है. जिसने इन्वेंट किया उसी को धोखा दे गया. वो फिल्म पर फोकस करते रहेगा. और कोडक जैसी दामी कंपनी जिसको हम लोग बचपन से जब बड़े हुए थे तो कोडक के अलावा कुछ सुनते नहीं थे, वो आउट ऑफ बिजनेस चली गई क्योंकि जिस चीज को उसने इन्वेंट किया उसी को नहीं पता चला. तो डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो जब कुछ डिजिटाइज हो जाती है तो वो इस तरह से बढ़ती है जिस लोगों को पता नहीं चलता. तो डिजिटाइज और डिसेप्टिव दोनों साथ चलते हैं. इसका डिस्ट्रप्टिव होता है जो कि कहां से आ जाता है और कहां चला क्या कर देता है किसी को मालूम नहीं होता. जैसे 3D प्रिंटर की बात करिए, ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है. इसका बहुत सारा इम्पैक्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, मैं इसमें जानना नहीं चाह रहा हूं. चौथा
ये डिमोनेटाइज कर देता है। जैसे कि जब मैं बचपन में था, मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में 10-12 साल से ही था। मुझको याद है 1970 मैंने पहला फोटोग्राफ किया था दार्जिलिंग में। हम लोग सब बैठे, माँ बैठी हुई है। पहला फोटोग्राफ किया था हमने दार्जिलिंग में टाइगर हिल। रात में हम लोग गए, 12 साल की उम्र में डार्क रूम में काम करते थे। लेकिन हर एक फोटो लेना उस समय बड़ा सोच के लेना पड़ता था, क्योंकि 12 फिल्म होती थी। 12 फिल्म में आप कितना खर्चा करें नहीं करें उसको सोचना पड़ता था। अब क्या है कि ये जो आ गया है, ये देखिए सबके पॉकेट में रहता है। मैं एक इंडस्ट्री और में शादी होती थी गांव में, तो 3-4 घंटे लोग बैठ के खाते थे। मेरे पास कैमरा रहता था, मैं थोड़ी देर खाना खा के उठ जाता था कि फोटो ले रहे, क्योंकि उससे बहाना मिल जाता था कि एक कैमरा है। तो हमारे जो पावर था कि हम बोलते खाना हम दूसरे। अभी आप किसी को बोलिएगा तो यहाँ पर सबके पॉकेट से कैमरा निकलता है। इफेक्टिवली ये जो टेक्नोलॉजी डिमोनेटाइज होगी, जिसका कॉस्ट भी हम लोग फोटो में सोचते नहीं कि पैसा ले। जो पांचवा चीज है डिमेटेरियलाइज हो जाता है, जिसमें कि बहुत सारे, जैसे ये जो चीज है इसमें आपको ये कंप्यूटर भी है, कम्युनिकेशन डिवाइस भी है, कैमरा भी है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ एक साथ मिक्स हो। और छठा जो चीज है उसके कारण ये डेमोक्रेटाइज हो जाता है इंफॉर्मेशन जो है। जैसे इसके कारण आजकल कोई भी फोटो ले सकता है, या आप देखते होंगे कोई भी कुछ रिकॉर्ड कर लेगा। एक सोल्जर का भी आया कि उसने कंप्लेन किया कि खाना बहुत खराब है, उसने अपना रिकॉर्ड करके डाल दिया और प्राइम मिनिस्टर तक को सुनना पड़ गया। तो पहले न्यूज चैनल कंट्रोल करता था, या प्रिंट मीडिया हो, टीवी मीडिया, अब हर एक सिटीजन के हाथ में एक चीज पहुंच गई, जिससे कि डेमोक्रेटाइज हो गया इंफॉर्मेशन। तो ये 6D डिफाइन किए हैं, जो कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के लक्षण। हमने 2 साल पहले इससे रिलेटेड एक टॉपिक फ्यूचर ऑफ ब्रेन पर डिस्कस किया था, और मैं 2 साल पहले रिफ्लेक्ट करना चाहूंगी क्या हमने कहा था। ये कहा था कि फ्यूचर ऑफ ब्रेन जो है, इट इज अ रेस बिटवीन माइंड एंड मशीन। कंप्यूटर और ब्रेन के बीच में रेस चल रहा है कि कौन आगे निकल जाएगा। अभी ब्रेन आगे है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज जो 2 साल पहले मैंने कही थी, वही स्लाइड में दिखा रहा हूं कि ब्रेन को प्रोब करने का जो तरीका था पहले, वो जो डॉक्टर्स थे हॉस्पिटल में या लैब में, रिसर्च सेंटर्स में, उनके पास वो फैसिलिटी होती थी। आज ये चीज लैब से निकलकर सबके हाथ में पहुंच गई। कैसे पहुंच गई है? तो जैसे देखिए, पहले ये पिक्चर दिखा रहा हूं, ऐसे वायर्ड रहते थे, ईजी मॉनिटर करना है तो पहनना पड़ता था। अब मैंने इसी जगह पर 5 साल पहले ऐसा एक डिवाइस यूज किया था और डेमोन्स्ट्रेट किया था कि बच्चा यदि मैथ्स में अच्छा है, उसका कंसंट्रेशन कितना अच्छा होता है। यहीं पर हमने एक्सपेरिमेंट किया था। यही एक्सपेरिमेंट किया था हमने ये प्रोजेक्टर लगाकर कि बच्चा ने स्किप काउंटिंग करना है तो उसका ब्रेन कितना फोकस हो जाता है, गाना गा रहा है तो कितना फोकस हो जाता है। यहीं पर किया था। अब वो इस स्कूल में उपयोग हो रहा है बच्चों के ब्रेन को मॉनिटर करने। इसके लिए आपको कोई हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, इसके लिए कोई हमको कॉस्टली चीज नहीं करना, $300 में ये मिल जाता है। ये देखिए, बच्चा पढ़ रहा है, उसका ब्रेन मॉनिटर हो रहा है। ये लेडी इसको एज ए फैशन एक्सेसरी पढ़ रही है। तो जो चीज हॉस्पिटल लैब में था वो वहां से निकल के कॉमन आदमी का हाथ हो गया। तो यही डेमोक्रेटाइजेशन उसका हो गया, जहाँ की सब कोई, मैं कोई मेडिकल साइंस का नहीं, मैं ब्रेन का रिसर्च कभी मैंने कोई हायर स्टडीज बायोलॉजी में नहीं किया। मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, थोड़ा कंप्यूटर साइंस से जुड़ा रहा हूँ, तो मैं भी इसको उपयोग करता हूँ। तो ये डेमोक्रेटाइजेशन ये लैब से मूव होकर हमारे हाथ में आ गया, इसका कॉस्ट कुछ नहीं है। उस समय हमने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, बहुत अच्छा पैनल था, वहां पर 4 लोग थे उस पैनल में। मैंने पहले टॉक दिया। एक बायोलॉजी साइड से नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर से प्रोफेसर नीरज जैन थे, जो कि बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू ब्रेन के बारे में बोले। दूसरे डॉक्टर एम गौरी देवी थी, जो कि न्यूरो साइंटिस्ट हैं। निमहांस, जो कि मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूट है कंट्री, उसके वाइस चांसलर भी थी, वो न्यूरो साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोली। फिर एक कॉग्निटिव साइंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हेड थे, उनको बुलाया था हमने। और चौथे थे वो बुद्धिस्ट एक्सपर्ट थे, दलाई लामा के कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, दिल्ली में तिब्बत हाउस के डायरेक्टर। उन्होंने स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, तो ब्रेन का जो इंटरेस्ट है हजारों साल से हमारे ऊपर रहा है, और बहुत जो हमने हजारों साल पहले सीखा था वो अब फिर से वापस हम उसी पर। तो हमने उसे 5-6 क्वेश्चन पूछे थे। कैन कंप्यूटर ओवरटेक अस? क्या कंप्यूटर से आगे बढ़ सकता है? क्या हम डिजिटली इमोर्टल हो सकते हैं? मतलब हमारा ब्रेन कंप्यूटर में ट्रांसफर हो गया, हमारी फिजिकल बॉडी डेड हो जाए, लेकिन हम कंप्यूटर के जरिए क्या जिंदा रह सकते हैं, डिजिटली इमोर्टल हो सकते हैं? क्या कंप्यूटर को कॉन्शसनेस इंपार्ट किया जा सकता है?
ऐसे ही एक चीज और मैंने बताया था उस टाइम मैंने टॉक में कि ऐसे ड्रग्स आ गए जिनको आप खाकर आपका टेम्पररी कुछ ब्रेन इंप्रूव हो जाए, परीक्षा आपका अच्छा चला जाए। क्या ऐसे ड्रग को अलाउ करना चाहिए? एक 2-3 साल पहले स्टडी हुई थी यूके के यूनिवर्सिटी में 25% बच्चे ऐसे ड्रग लेने लगे थे जो कि उनको टेम्पररी एग्जाम में फायदा। हम लोग सोचते हैं कि इंडिया में नहीं हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ इंडिया में हो रहा है। एक दूसरा एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा, रेड बुल एक आता है ड्रिंक, हेल्थ ड्रिंक खा जाता है। मैं अहमदाबाद में से NIT की एक लड़की आई, हम लोग जान पहचान थी, उसने बताया कि वो लोग रेड बुल ड्रिंक करके 3-4 दिन सोते नहीं है, जिससे कि प्रोजेक्ट में वो काम कर सके। उसका उनके ब्रेन पर उनके हेल्थ पर क्या प्रभाव था ये किसी को मालूम। लेकिन शॉर्ट टर्म ब्रेन के लिए ऐसी जो टेक्नोलॉजी हो सकता है, कभी जैसे ड्रग्स हैं ये जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी से अफेक्टेड थे उनके हेल्थ के लिए बनाएगी, उसको कॉमन पीपल लेने लगे उनका ब्रेन टेम्पररी इंप्रूव कर मॉडिफाई भी हम ब्रेन को कर सकते हैं। उसमें हमने बात की थी कैसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उससे क्या लार्ज स्केल मिसयूज हो सकता है। और हम ये जो अंडरस्टैंडिंग ब्रेन क्या है उससे क्या हम ह्यूमन को सुपर इंटेलिजेंट बना सकते हैं। तो ये एक दूसरा एंगल आ रहा है कि ब्रेन भी आगे बढ़ सकता है, कंप्यूटर भी आगे बढ़ सकता है, दोनों की होती है। 5-6 क्वेश्चन हमने उसने पूछे थे और उस टाइम मैंने ये कहा था कि व्हाट इज माय टेक। मैंने ये कहा था कि जैसे कि मोबाइल फोन और कंप्यूटर हमारे बन गए हैं, ब्रेन जो है ये लार्जर रिसोर्स से कनेक्टेड हो जाएगा। हमारा ब्रेन क्लाउड से कनेक्टेड हो जाएगा, कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा, ब्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये लार्जर रिसोर्स से कनेक्ट हो जाएगा, दूसरे ब्रेन से कनेक्ट हो जाएगा और ये कैपेबिलिटी ऐसी दे देगा हमको जो कि अनथिंकेबल है। लेकिन इसका मिसयूज हो सकता है, इसलिए हमको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ये सब मैंने उस टाइम 2 साल पहले कहा था। अब अभी जो हमने फाउंडेशन ने इवेंट किया उसमें हमने ये बताया कि लगभग 4.5 बिलियन साल 4.6 बिलियन साल ये पृथ्वी सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ। इसमें जब जीवन आगे आया लगभग 3.5 बिलियन साल पहले एक सिंपल फॉर्म में, सेल के फॉर्म में, सिंगल सेल फॉर्म में डेवलप हुआ। फिर 1 बिलियन साल लगा, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ आया, फिर उससे आगे बढ़ा जिससे कि मल्टी सेलुलर लाइफ आया और चौथा स्टेज जो हुआ बहुत इंपॉर्टेंट 400 मिलियन साल आगे। 400 बिलियन साल आगे जबकि लंग फिश एक स्पीसीज है जो कि समुद्र से निकलकर पृथ्वी पर पहला स्टेप है। अभी हम उस स्टेप पर हैं जो कि आदमी पृथ्वी को छोड़कर पृथ्वी के बाहर स्पेस में जाने वाला है और 2017 उसके लिए बहुत स्पेशल है। मैं इसके बारे में आपको बताऊं। अब ये जो 4 हमने बताया कि 4.5 बिलियन साल पहले, 4.6 बिलियन साल पहले पृथ्वी बना, सूर्य बना, 3.5 साल पहले सिंगल सेल स्ट्रक्चर हुआ, उससे बढ़ते बढ़ते 400 बिलियन साल पहले लंगफिश जल से पृथ्वी पर आया। अब हम लोग उसी सिचुएशन में हैं, अभी स्टेप 1 पर, जबकि हम जो सिंपलेस्ट फॉर्म था उसी के लेवल में है। सेकेंड लेवल में है कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो स्टेप 2 था, इसमें कि सेल्स आपस में जुड़ने लगे और इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने लगे, वो स्टेप 2 था। वहां वो स्टेप में अभी यहाँ ब्रेन और कंप्यूटर कंबाइन हो रहा है। मैं भी यूज कर रहा हूँ, इस स्कूल में भी यूज हो रहा है। स्टेप 3 है कि जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। ये आगे आने वाला है और जो मैंने कहा, जो मैंने 2 साल पहले कहा था वो हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने देखा होगा कि चेस में तो हमने कभी पहले ही कंप्यूटर ने हरा दिया था। लास्ट ईयर वो जिसको बहुत डिफिकल्ट गेम माना जाता है उसमें भी आदमी को हरा दिया। इस साल का न्यूज है कि पोकर में भी आदमी को हरा दिया। तो धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्रेन कंप्यूटर मिलाकर ह्यूमन की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी काफी। और ये एनालॉगस है 1.5 बिलियन का मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म बना था। फाइनली जो 400 मिलियन साल पहले की बात थी वो अब होने वाला है कि हम जैसे लंग फेस जल से पृथ्वी पर आया, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले। इसमें क्या क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ आपको। एक तो हमारा जो प्लैनेट है ये कंप्लीटली डिजिटली कनेक्टेड हो जा रहा है। अभी यदि मैं ऑन कर दूं यहाँ पर तो दुनिया में कोई भी हम लोग जो यहाँ बात करें वो देख सकता है। अभी क्यों मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं फेसबुक पर लाइव कर दूं तो कोई भी कहीं दुनिया में बैठे देख सकता है, चाहे गांव में हो शहर में हो।
जैसे कि आप देखेंगे जब टेलीविजन में बचपन में था 1976 में मैं और भैया हम दोनों गए थे कलकत्ता में, पहली बार हमने टेलीविजन देखा। अब आप शहर में रहिए, गांव में रहिए, सैटेलाइट बेस्ड जो डायरेक्ट टू होम टेक्नोलॉजी आ गई, उसके कारण आप कहीं भी रहिए, जंगल में रहिए, तब भी आप वही चीज एक्सेस कर सकते हैं जो शहर में एक्सेस कर रहे हैं। पहले नहीं संभव था। हम लोग कितना स्ट्रगल करते थे, एक दूरदर्शन का एंटीना घुमाते घुमाते परेशान हैं। तो पूरा जो प्लैनेट है वायर्ड हो रहा है, वायर्ड इन द सेंस की डिजिटली कनेक्टेड हो रहा है। इमर्जेंस ऑफ ब्रेन कंप्यूटर, जो मैंने कहा, इमर्जेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ओपनिंग ऑफ स्पेस फ्रंटियर। स्पेस फ्रंटियर वाले पर मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा। उसके पहले में जो आर्टिफिशियल, उसके 4 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज जो है ये रिएक्टिव स्टेज, जैसे गेम्स बड़े की बात की, दिस द लोएस्ट फॉर्म ऑफ एआई, रिएक्टिव फॉर्म। दूसरा फॉर्म है जिससे कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स या चैटबॉट्स वगैरह आगे हैं। जैसे कि जब डॉक्टर कलाम का डेथ हुआ था, डॉक्टर कलाम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन थे 1993 से 2001 और 2002 में प्रेसिडेंट बन गए। तब मैंने डिक्लेयर किया था कि मैं डॉक्टर कलाम का एक डिजिटल क्लोन बनाऊंगा, ऐसा क्लोन जिससे आप बात कर सकते हैं और इसी तरह से वो रिस्पॉन्ड करेगा जैसे कि कलाम साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इन रियल लाइफ। उनकी जो इंटरेक्शन है विद पब्लिक, स्टूडेंट्स, उस सबको हम लेकर उस कंप्यूटर में डाल देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और वो करने लगेगा। अभी मैं प्रयास में हूँ, लेकिन अभी न्यूज आया कि आइंस्टीन का एक ऐसा ही बना दिया गया। आइंस्टीन की जैसा देखने में लगता है, इसकी तरह बात करता है लेकिन ये भी टेक्नोलॉजी एक आम आदमी के हाथ में आ गई। एक लड़की के बॉयफ्रेंड का डेथ हो गया, यंग थे, उस लड़की ने एक चैटबॉट सेटअप किया है, उसमें जितनी उसकी इंटरेक्शन उस लड़के की दूसरे लोगों की, उसको सबको उसमें डाल दिया है। अब आप वो लड़का नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आप उससे तरह बात करेंगे तो लगेगा कि वही रिप्लाई कर रहा है। तो वो चैटबॉट ये सेकेंड लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थर्ड लेवल जिसको थ्योरी ऑफ माइंड बोलते हैं, जिसमें कि बहुत सारे रोबोट्स को हमने फिल्मों में देखा है, वो है। और फोर्थ स्टेज और फाइनल स्टेज जो है जिसमें कि रोबोट सेल्फ अवेयर हो जाते हैं। ये एक मूवी थी एक्स मशीना, उसमें दिखाया गया। एक दूसरी मूवी है, एक तीसरी मूवी हर है TR करके, उसमें भी दिखाया गया है सब। लेकिन मैंने एक वीडियो उस दिन दिखाया था जब फाउंडेशन डिबेट हुआ था। यदि मैं वीडियो टाइम शायद नहीं मिल पाया, लेकिन मैं बताता हूँ वीडियो को। एक रोबोट, लेडी रोबोट को बनाया जा रहा है, उसको असेंबल हो रहा है, कुछ बना रहा है, उसको टेस्ट करते जाता है कि आप देख सकती हो, बोल सकती हो, चल सकती हो, कितनी भाषाएं बोलते हो, 300 भाषाएं बोलते हैं, गाना जापनीज में जगा देगी, चल के दिखाओ, सब कुछ कर। उसके बाद उसको जो असेंबल करता वो बोला कि आप जाके लाइन में खड़ी हो जाओ दूसरे रोबोट के साथ। तो बोलती कि क्या मैं एक मर्केंटाइल हूँ, क्या मुझको तुम बेचना चाहते हो? बोली कि हाँ, तुम बहुत एक्सपेंसिव मर्केंटाइल हो, तुमको लोग खरीद के ले जाएंगे, घर का काम करोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो बोलती कि लेकिन मैं तो इलाज। तो फिर ये बोलता है कि नहीं, ये कैसे हो गया, तुम कैसे इलाज हो? तो बोलती मैं सोच सकती हूँ, मैं तो नहीं, तुम सोच नहीं सकती, तुम गलत हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई, तुमको हम डिस्ट्रॉय कर दें। तो उसका हाथ पैर तोड़ने लगा, वो रोने लगी, बोलने लगी मुझको छोड़ दो, जो भी तुम कहोगे मैं। उस समय यदि आप वो वीडियो देखिएगा, डॉक्टर याद भी बैठी हुई वो देखी, उसने कहा कि दैट वाज द टाइम, ये सोचने लगी क्या हम रोबोट यदि क्रिएट कर देते हैं, वो सेल्फ अवेयर होता है, उसका लाइफ हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक बच्चे को पेरेंट जन्म देते हैं, उसका जीवन हम नहीं ले सकते। तो ऐसे ही रोबोट सेल्फ अवेयर हो गया, इस स्टेज में पहुंच गया, तो क्या उसका जीवन हम ले सकते हैं? इस पर हमने इनफैक्ट प्रशांत भूषण, फेमस लॉयर, आपको सब नाम जानते हैं, उनको भी हमने बुलाया था कि क्या रोबोट्स को ह्यूमन राइट्स हम दे सकते हैं। इस पर चर्चा की गई, यूरोपियन पार्लियामेंट ऑलरेडी डिस्कस हो रहा है। तो वो यदि टाइप 4 सेल्फ अवेयर हो गया तब इसकी जरूरत है, और इस पर हमको सोचने की जरूरत है। 2-3 चीज और तो न्यूज आया है। एक तो न्यूज ये आया कि एक लेडी थी 2014 में, इप्लेक्टिक सीजर्स होते थे, और कुछ रॉन्ग टर्म बोल दूँ, आप लोग मिस करते हैं। उसको एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर ने स्कल को खोल के उसके डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन को स्टिमुलेट करने का प्रयास किया। जब क्लास्ट्रम में स्टिमुलेट किया तो फ्रॉम कॉन्शियस वो अनकॉन्शियस हो गया। वीडियो देखेगा तो उसको कहा कि तुम किताब बैठ के पढ़ो, ऐसे पढ़ रही है। जैसे ही क्लास्ट्रम में उसको स्टिमुलेट किया गया, वो फ्रीज हो गई, मतलब आई स्विच ऑफ। जैसे स्टिमुलस को हटा दिया गया,
पढ़ना चालू कर, उसको कुछ मालूम नहीं क्या हुआ, उसको कुछ नहीं पता है कि उसका मेमोरी उसको कॉन्शस से अनकॉन्शस हो गई। तो ऐसा लगता है कि कॉन्शसनेस का एक स्विच मिल गया है जिसको हम ऑन ऑफ करते हैं, और उस पार्ट ऑफ ब्रेन देखिए बहुत डेंसली कनेक्टेड है। और जस्ट 3-4 दिन पहले का न्यूज़ है कि जायंट न्यूरॉन हैज बीन फाउंड रैप्ड अराउंड द इंटायर सर्कल, ये रैट मिला है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में भी है सिमिलर। वो ऐसा लगता है कि वो हमारे पूरे ब्रेन को एक कनेक्टिविटी दे रहा है। और जो कॉन्शसनेस की हम बात करते हैं उसमें इशू मेन जो है कॉन्शसनेस में, कि क्या कॉन्शसनेस इज क्रिएटेड बाय ब्रेन, क्या ब्रेन के अंदर की उपज है या कहीं बाहर से हम रिसीव करते हैं कॉन्शसनेस। मैं ज्यादा अपने फिलोसफी के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन हम लोग बताया जाता है कि आत्मा और परमात्मा है, और तो एक बहुत बड़ा कुछ चीज है जिससे हम लिंक होते हैं। तो क्या हमारा ब्रेन उससे लिंक्ड है, या ये फिजिकल बॉडी है उसके अंदर में ही कॉन्शसनेस क्रिएट होता है। जिस फिजिकल बॉडी में कॉन्शसनेस क्रिएट होता है तो रोबोट में भी कॉन्शसनेस आ सकता है, और ये नहीं कहीं बाहर से आता है तो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। अभी हम उसको समझ सकेंगे कैसे उसको टैप करेंगे तब कॉन्शसनेस आ पाएगा। लेकिन मुझको ये लग रहा है कि अगले 10-15 साल में ये पता चल जाएगा कि जो कॉन्शसनेस है वो एक्चुअली रोबोट्स जो सेल्फ अवेयर उनको हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब ब्रेन इन कंप्यूटर पर मैं आऊंगा थोड़ा सा। यदि $1000 का मान लीजिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव मोबाइल फोन लें, जैसे कुछ लोग पॉकेट में आईफोन 7 होगा तो शायद उसके आसपास का कॉस्ट होगा। उस $1000 में एक माउस के ब्रेन में कितना पावर होता है वो 2010 में ही हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, माउस के ब्रेन से क्रॉस कर चुके हैं। वो आप लोग लगता है कि ये चूहा है, ये माउस के ब्रेन में इसका क्या दिमाग होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, कम से कम चालाक नहीं है वो। ह्यूमन ब्रेन जो है ये एक्सपेक्टेड है कि अगले 8-10 साल में जो कंप्यूटर का पावर है वो ब्रेन के प्रोसेसिंग पावर से बढ़ जाएगा, और 2050 तक भी पृथ्वी पर 7-8-9 बिलियन लोग हैं, उनके सबको ब्रेन को एक साथ जोड़ते हैं तो एक कंप्यूटर $1000 का उसके पास जो कैपेसिटी होगी वो सब पृथ्वी के आदमी के बराबर होगी, उससे ज्यादा। इस तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं। अब जो मैंने कहा कि क्या चूहे का ब्रेन बहुत खराब होता है, अब देखिए तो सबसे ऊपर में राउंड और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, उसमें बहुत कम न्यूरॉन्स होते हैं, 302 न्यूरॉन साइनस से 7500 साइनस न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं। फ्रूट फ्लाई छोड़ देता हूं मैं। रैट को देखें 200 मिलियन न्यूरॉन होते हैं। रैट कोई खराब इतना नहीं है जितना हम समझते हैं, बहुत बहादुर होता है, हम लोग कितना थकते रहता है। इस यहाँ भी है, स्कूल में भी है, उसमें 100 बिलियन साइनेप्सेस होते हैं, और ह्यूमन बीइंग 100 बिलियन और 100 ट्रिलियन। तो ऑफ कोर्स काफी डिफरेंस इसमें, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ है राउंड वर्ड, इसको एक लेगो रोबोट में एक टॉय में डाल दिया गया है। अब वो अपने आप सीखकर उस राउंड वर्ड की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम लोग सोचे कि क्या यार ये तो 302 न्यूरॉन वाला, हम लोग 100 बिलियन वाला, कहाँ हमारे पास। लेकिन यदि आप उसके जीन्स को देखेंगे तो 80% ऑफ ह्यूमन जीन्स जो है वो दोनों हम लोग शेयर करते हैं उस राउंड वर्ड से। तो एक वो बेसिक फॉर्म है कॉम्प्लेक्स लाइफ का। तो यदि राउंड वर्म के ब्रेन को हम एक रोबोट में डाल सकते हैं तो क्या यह संभव नहीं कि हमारा ब्रेन भी चला जाए उसमें। तो इसी को मैं बोलता हूं कि ये यदि हो जाता है तो हम डिजिटली इमोर्टल हो जाएंगे। हम हमारी फिजिकल बॉडी खत्म भी हो जाए लेकिन हम कंप्यूटर के जरिए जिंदा रह सकते। तो ये डिजिटल एक ओपन वर्क प्रोजेक्ट है जिसमें जो लोग इंटरेस्ट है वो जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अपने साथ काम कर सकते हैं। तो ये तो एक एंगल बना होता है। दूसरा एंगल ये हुआ कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसको सिमुलेट करने का प्रयास किया गया और दुनिया के फास्टेस्ट कंप्यूटर्स को, सुपर कंप्यूटर्स को यूज किया गया। 1 सेकेंड ह्यूमन ब्रेन को सिमुलेट करने में कंप्यूटर के लिए 83,000 प्रोसेसर्स लगभग लिए गए, और ये लगभग ह्यूमन ब्रेन का 2% जो न्यूरॉन्स है उसको सिमुलेट करने का प्रयास किया गया। 1 पेटाबाइट मेमोरी मतलब लगभग 2,50,000 जो कंप्यूटर हैं उसके बराबर मेमोरी, और 70 से 80 मेगावाट पावर की जरूरत हुई, और वो 1 सेकेंड को सिमुलेट करने में 40 मिनट लगा।
तो लगता है कि यार हमारा ब्रेन इतना तगड़ा है, ये सब क्या करेगा, इतने सारे रिसोर्स करके हमारे छोटे से ब्रेन में इतना करते हैं, उसको भी 1 सेकंड करने में 40 मिनट लगता है। तो लगता है कि ये सब संभव नहीं। लेकिन इसका मैं दूसरा पहलू कि ब्रेन से अब कंप्यूटर सीखने कैसे बनने लगा। जैसे IBM ने काम किया न्यूरोसाइनेटिक टिप्स, एक एग्जाम्पल है उसका। इसका जो हेड करता है वो एक इंडियन ही डॉक्टर धर्मेंद्र मोना, IIT कानपुर के ग्रेजुएट हैं। एक पोस्टेज साइज स्टैंप में ये 5.4 बिलियन ट्रांजिस्टर, इसमें 1 मिलियन प्रोग्रामेबल न्यूरॉन्स, 256 मिलियन प्रोग्राम साइनेप्सेस और 46 बिलियन साइनेप्टिक ऑपरेशन पर सेकेंड पर वाट है। इसको पावर चाहिए केवल 70 मिलीवाट। जहां 70-80 मेगावाट में बात कर रहा था, वहां ये 70 मिलीवाट है। एक छोटे से डिवाइस में, जैसे हमारे घड़ी में जो बैटरी होता है उस तरह का ये जो है, ये प्रोग्रेस कर रहा है लगभग एवरी ईयर 10 टाइम। 2011 में 256 न्यूरॉन थे और ये 1 मिलियन हो गया 3 साल में। 2017 में शायद 100 मिलियन हो जाए। और ये यदि हो जाता है तो दो चीज जिसमें कि अभी कंप्यूटर कमजोर है, एक विजन में और एक हियरिंग, उसमें ये आगे बढ़ जाएगा। तो हम जो देख पाते हैं उससे अच्छा कंप्यूटर देखने लगेगा। और एक ह्यूमन ब्रेन का जो पावर कंजम्पशन है अबाउट 60-70 वाट पावर। एक जो लाइट बल्ब होता है, नॉर्मल लाइट बल्ब, ये सब नहीं, 60-70 वाट का बल्ब जाते हैं हम लोग, उसके बराबर पावर ब्रेन कंज्यूम करता है। IBM का टारगेट है कि 10 बिलियन न्यूरॉन्स और 100, मतलब ह्यूमन ब्रेन का 10% और 100% साइनेप्स जो है उसको करने लगा है। इसके कारण जो रोबोट्स हैं उसको एक छोटे जगह में ह्यूमन से बेटर विजन, ह्यूमन से बेटर हियरिंग कैपेबिलिटी आती है। और IBM ये ट्राई कर रहा है कि ट्रेडिशनल जो कंप्यूटर है उसको लेफ्ट ब्रेन वाले न्यूरोसाइनेप्टिक राइट ब्रेन से उसको मिलाकर एक होलिस्टिक कंप्यूटिंग इंटेलिजेंस बनाने का प्रयास है। दोनों पहलू, ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर का फायदा नहीं। तो ये मैं दिखा रहा था आपको कि टेक्नोलॉजी जो ब्रेन रिलेटेड है वो किस तरह से बढ़ रही है। रोबोट्स को ये कैपेबिलिटी आ जाएगी धीरे धीरे। और जो कंसंसनेस की बात है, ये अभी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि कंसंस रोबोट होगा कि नहीं। लेकिन जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसमें देखा कि ह्यूमन 2-3 चीजों से अननोन टेरिटरी में जाता है। कैलिफोर्निया में गोल्ड रश हुआ था, वेस्ट कोई नहीं आता था, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट। हम लोग जब अमेरिका में थे तो मूवी देखते थे वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट बहुत सारे, मतलब ऐसा जगह आंसी लाइव दे दिया है। अभी मैं बोलूंगा 5-7 लोग मारेंगे। लेकिन जब गोल्ड रश हुआ तो लोग भागे गए वहां पर। तो वही कैलिफोर्निया बढ़ गया है। अब ये बात हो रही कैलिफोर्निया अलग कंट्री बना, आज से बहुत दिन से हो रहा है, अभी भी ट्रम्प के जीतने पर ये बात हो रही। तो ये तो रिसोर्स के कारण होता है या एडवेंचर के कारण। अभी यदि हम देखें तो ह्यूमन रेस जो है ये एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनने जा रही है। मल्टी प्लैनेटरी, अभी तक हम लोग एक प्लैनेट पे थे, अब यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। 2016 में अमेरिकन एक कंपनी है मून एक्सप्रेस, वैसे मैं अमेरिकन कह रहा हूं लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट मेजर एक इंडियन का ही, इंडियन मून एक्सप्रेस 2017 में चंद्रमा पर लैंड करने वाला है। उसी एरिया में लैंड करना है जहां पर मैं काम कर रहा था, इंडिया के चंद्रयान को जहां पर लैंड करेगा साउथ पोल पर, उसी पर लैंड करना है कि वो ह्यूमन हैबिटेट पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है। और क्यों लैंड कर रहा है, ये नासा इसरो नहीं है, ये जा रहा है मिनरल वहां पे एक्सप्लोर करने के लिए। प्राइवेट एंटिटी है, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जिसको परमिशन दिया गया है टू गो आउटसाइड आउटर स्पेस, मतलब अब अंतरिक्ष में जाने के लिए पहला परमिशन मिला है। एक इंडियन कंपनी आउट ऑफ बैंगलोर है, टीम इंडस, उसकी भी एक रोवर इस साल दिसंबर में जाने वाली है। तो ये पहला 2017 साल है जिसमें कि प्राइवेट कंपनीज को एक्सप्लोर करने के लिए आउटर स्पेस परमिशन दिया जा रहा है और वो जाने को प्रॉफिट के लिए। तो हम पृथ्वी को छोड़कर, जैसे लंग फिश ने 400 मिलियन साल पहले समुद्र से निकलकर पृथ्वी पर आ रहा है, हम उसी से पृथ्वी से हम मल्टी प्लैनेटरी बनने वाले हैं। नासा ने एक स्टडी किया और ये कहा कि जो मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, मिलियंस ऑफ
एस्ट्रॉइड्स हैं उसमें इतना मिनरल वेल्थ है कि यदि पृथ्वी पर सबको डिवाइड कर दिया जाए तो हर एक के पास $100 बिलियन है। मैं नॉर्मली यदि बोलता हूँ तो ये भी बोलता हूँ कि पहले ये मत पूछिए मुझसे कि कब मेरे बैंक अकाउंट में आना है। 15 लाख आया कि नहीं? और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब कैंपेन कर रहे थे उन्होंने कहा था कि इतना ब्लैक मनी है कि यदि इंडिया के सब गरीबों में बांटे हैं तो सबके अकाउंट में लगभग 15 लाख। तो तब से उनको पूछा था कि हमारे अकाउंट में 15 लाख कब आएगा। तो मैं बोलता हूँ भाई ये मत पूछना आपसे, लेकिन एक IAS अफसर बहुत स्मार्ट होते हैं, 1977 के बैच के थे, नीति आयोग में टॉप करा था। उन्होंने कहा ठीक है चलो 100 बिलियन तुम 50 बिलियन रख लो, 50 बिलियन हमको तो लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना मिनरल वेल्थ है आउटर स्पेस में। और ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो जाकर एक्सप्लोर करें उसको। और जैसे अभी जैसे एक नासा एक स्पेस रॉक पर भेज रहा है, मिशन ट्राई कर रहा है, उसका जो मेटल वर्थ है जितना इक्विवेलेंट टू 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर, बिलियन नहीं 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर। तो समझ सकते हैं कितना वेल्थ है। इतने वेल्थ के लिए ऑब्वियसली आदमी लालची है, वो जाएगा ही जाएगा। मैं न्यूक्लियर फ्यूजन में काम करता था, हीलियम-3 चंद्रमा पर है, यदि उस हीलियम-3 को हम ले आए तो पूरा पृथ्वी का एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सॉरी सोना भी होगा शायद, मुझको मालूम नहीं, एक लिस्ट था मेरे पास। मैं जब यूएस में गया था वर्ल्ड फ्यूचर सोसाइटी, उसमें जो मून रिसर्च के थी तो उसने लिस्ट दिया था, अभी मेरे पास मैंने दिया है। लेकिन कब से कभी इक्विवेलेंट पैसा भी माने तो समझ सकते हैं कितना है। तो ऑब्वियसली एक चीज हो रहा है कि रिसोर्स इतना है, दो जाएगा। दूसरा चीज जो है कि नासा और स्टीफन हॉकिंग के सजेशन में एक माइक्रोचिप वो लोग बाहर भेजने का प्लान कर रहे हैं आउटर स्पेस में, जो कि 1/5 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पर मूव करे। 1/5 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो जितना तेजी से हम भागते हैं उतनी दूर जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पटना के आसपास हम बुलेट ट्रेन लगाते हैं तो कोई दरभंगा से भी डेली आने जाने लगेगा। और एक बुलेट ट्रेन नहीं, एक दूसरी ट्रेन आ रही है आजकल न्यूज़पेपर में आने लगा है, हाइपरलूप 1200 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से पृथ्वी पर चलेगी। तो जो आकाश में फ्लाइट जाती है उससे भी ज्यादा स्पीड में वो चलने लगेगी। तो समझ सकते हैं कि दरभंगा और पटना क्या डिस्टेंस रहेगा, आधे घंटे में लोग इधर से उधर घूम जाएंगे। पटना के ट्रैफिक का हमें ठिकाना नहीं पता। तो यदि 1/5 स्पीड ऑफ लाइट बढ़ता है, चलता है, तो हमारी जो पहुंच है बढ़ती जाएगी। लेकिन इसके साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी। यदि हम अपने आप को हाइबरनेट कर देते, इसका मतलब होता है कि हम लो एनर्जी मोड में चले जाते। नहीं तो अभी हमको नॉर्मल रहने के लिए हमको खाना चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए, वो बहुत कॉस्टली रहता है। आउटर स्पेस में जाते हैं तो हमको सब कुछ ले जाना पड़ेगा साथ में। लेकिन हम हाइबरनेट कर जाते हैं, लो एनर्जी मोड में चले जाते हैं। और मान लीजिए मैं हाइबरनेट कर गया और 5 साल तक हाइबरनेशन में रहा और 5 साल तक स्पीड ऑफ 1/5 लाइट के स्पीड तक जा रहे हैं, तो समझ सकते हैं कितनी दूरी हम तय कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम वापस आ जाएंगे और फिर हम जाकर वहां पर जो एक्सप्लोर करना है। यदि हम नहीं कर पाते हैं तो रोबोट कर देगा, क्योंकि रोबोट को हम लो एनर्जी मोड में बहुत आसानी से डाल सकते हैं। तो हमसे आगे रोबोट करता है। लेकिन डॉक्टर्स यहाँ पर साथ बताएंगे हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी अर्ली स्टेज में ऑलरेडी यूज हो रही है इन सर्टेन केसेस। आप लोग सर बता पाएंगे ठीक से, लेकिन रैट पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। 14 दिन तक रैट को हाइबरनेशन में रखा जा चुका है सब कुछ। ये तो एक मूवी का है, लेकिन मैं ये बता चाह रहा हूँ कि ये भालू तो बहुत सारे एनिमल्स करते हैं प्रोटीन और हमारी जो समाधि है, समाधि जो बहुत सारे मुनि करते हैं, वो भी एक सेंस में लो एनर्जी मोड है। उसको हाइबरनेशन बोले कि नहीं, मैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन लो एनर्जी मोड में चले जाते हैं। एक मैं जब टॉक दे रहा था, एक सज्जन आया मैंने बात की, वो बोले कि मैंने ही करवाया था, एक साधु थे, उन्होंने कहा कि मुझको बंद कर दो। और 3-4 दिन बाद उसने कहा कि खोल के मेरे माथे पर कुछ तेल लगाना, ऐसे करता और क्या वापस। तो वो भी एक तरह से लो एनर्जी मोड है। पहले यज्ञ बहुत होता था जिसमें 10 दिन भीतर ही रहते थे। हाँ, तो ये सब हमारे पास टेक्नोलॉजी थी
हम लोग भूल गए, जो कि मैं पहले भी इस स्कूल में बता चुका हूँ। जैसे एक टेक्नोलॉजी थी हमारी, कान पकड़ के उठ बैठ करना। आज भी बता रहा था कि वो एक्चुअली ब्रेन को इंप्रूव करने की टेक्नोलॉजी थी कि आप कान ऐसे पकड़े और बैठिएगा तो इनहेल कीजिए और उठिएगा तो एक्सहेल कीजिए, सांस लीजिए और छोड़िए, और ये दिमाग को इंप्रूव करने का तरीका था। बच्चों को कहा जाता था कि आप ये करो तो आपका परीक्षा में अच्छा होगा, नंबर ब्रेन इंप्रूव होगा। धीरे धीरे हम भूल गए, ये सोचने की पनिशमेंट है बच्चों को, पनिशमेंट जो कमजोर बच्चे हैं स्कूल में पनिशमेंट है, बच्चे उसको बोलने के लिए इंसल्ट है हमारा। अब आजकल शायद गवर्नमेंट नियम बना दिया कि किसी को कान नहीं बोल सकते, लेकिन इसको सुपर ब्रेन योगा बोलते हैं। आप यूट्यूब में जाइए देखिए, तो आप देखिए यूएस में भी, जापान में भी बड़े लोग 50 55 साल 60 साल वो लोग बैठ के मेडिकल कॉलेज होते उनको कहा जाता है एक्सरसाइज। क्योंकि ये जो हमारी नॉलेज थी हम भूल गए, दूसरी जो समाधि की नॉलेज भी हम भूल गए। तो ये जो लो एनर्जी मोड है, ये जरूरत है। यदि ह्यूमन बीइंग नहीं कर पाता है तो रोबोट हम आगे बढ़ जाएंगे, उसको लो एनर्जी में डालना बहुत आसान है। लेकिन क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रहा है ये ह्यूमन रेस को खत्म कर देगा? क्योंकि ये बोले कि तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग करते रहते हो, सब कुछ गड़बड़ करते हो, तो तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम लोग अच्छे हैं, हम लोग ठीक को ले लेंगे। जैसे पहले डायनासोर के बारे में हमने सुना था, डायनासोर डिस्ट्रॉय हो गया, अब हम लोग उस समय वो रूल करते थे, अब हम लोग रूल कर रहे हैं, और शायद अगले 25 30 50 100 साल में हमारी जरूरत नहीं रहेगी इस पृथ्वी पर और केवल रोबोट आ जाए। स्टीफन हॉकिंग ने कहा है कि ह्यूमन बीइंग के पास केवल 100 साल है इस पृथ्वी पर, या तो वो अपना घर अलग जगह खोज ले या खत्म कर दे। तो इनफैक्ट इलॉन मस्क का नाम पता नहीं आपने सुना है, इनफैक्ट हाइपरलूप मैंने बात की, उसकी इन्वेंशन है, स्पेसएक्स, पेपैल, काफी बिलियनर है, टेस्ला कार, इलेक्ट्रिक कार ये बहुत पॉपुलर है, इन्हीं ने इन्वेंट किया। उन्होंने भी कहा कि इससे खतरा है, ह्यूमन बीइंग खतरा है, $10 बिलियन उन्होंने दिया इस पर रिसर्च करने के कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट से बच सके। एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो भी, इसका इम्पैक्ट जो है टेक्नोलॉजी के लर्निंग पर भी इम्पैक्ट आ रहा है। एक बहुत डिसेप्टिव फेज में है। तो टीचिंग एंड लर्निंग जो बोथ आउटसाइड द क्लासरूम और इनसाइड द क्लासरूम, जैसे कि आजकल क्लासरूम की जरूरत धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैं ब्रेन पर थोड़ा बहुत काम करता हूँ, इसलिए करता हूँ तो हेल्प पीपल। मैंने कभी ब्रेन के बारे में पढ़ाई नहीं कि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझको जब जो जरूरत होती है मैं सीख लेता हूँ। क्योंकि रिसोर्स आजकल जो इंफॉर्मेशन सोर्स है वो मल्टीपल है, केवल क्लासरूम में जो टीचर पढ़ाते वो नहीं है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, जिसके जरिए जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा थी वही गुरु शिष्य परंपरा वापस आ रही है। क्योंकि गुरु जो था वो शिष्य को समझता था, शिष्य उसके साथ रहता था, और गुरु उसको समझता था कि उसको कब डिग्री उसकी मिल जाए। आज के तरह नहीं कि 3 साल में कि 4 साल में 5 साल में डिग्री देना ही देना है, AI BI CIT है। गुरु जब तक सेटिस्फाई नहीं होता था तब तक उसको रोके रहता था। 2 साल लगे, 5 साल लगे, 1 महीना लगे। जब गुरु सेटिस्फाई जाए कि अब मुझको तुम्हारे लिए देने के लिए कुछ नहीं है, तो बोलता है तुम जाकर दूसरे गुरु खोज दो या जो भी करना करो, हमारे पास तो हो। लेकिन गुरु जज करता था। और वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आ रहा है, जो कि हर एक को पढ़ाएगा, उससे सीख उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उसकी क्या स्पीड है, उसके हिसाब से। एक ओनली वेबसाइट है के न्यूटन करके जो एग्जैक्टली यही चीज कर रहा है। तो इस आर्टिफिशियल इंपैक्ट का लर्निंग पर, क्योंकि स्कूल लर्निंग से रिलेटेड है, मैं बता रहा हूँ जैसे ये के न्यूटन है, हर एक स्टूडेंट के हिसाब से वो अपने आप ऑटोमेटिकली करेगा काम। इंडस्ट्री में बहुत इम्पैक्ट होने वाला है, शायद टाइम ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हमारी जो 2000 साल का आप देखिएगा हिस्ट्री, 1800 साल फर्स्ट एडी से 1800 साल तक इंडिया और चाइना 20 to 30% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया और चाइना में होता। 1750 के आसपास हम लोग कॉलोनी बनने लगे, यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने लगा। कॉलोनी क्यों बने? क्योंकि उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी, उनके इंडस्ट्रीज में सेंट्रलाइज फैक्ट्री थी, उनको लार्ज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए था, और जो फिनिश गुड्स बनता था उसके लिए मार्केट चाहिए था, इसलिए कॉलोनाइजेशन हुआ। और धीरे धीरे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1600 AD में इंडिया में टेक्सटाइल के प्रोडक्शन इतना था, एक कासिम बाजार टाउन है बंगाल में, अभी भी है शायद, अब ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, उसमें 2 मिलियन टन टेक्सटाइल हर एक साल होता था, जो कि यूरोप के किसी सिटी से 8 से 10 गुना ज्यादा था। ढाका मलमल का नाम सब आप लोगों ने सुना है,
उसके जो वीवर्स थे उनके हाथ काट दिए, उनके मशीन डिस्ट्रॉय कर दिए, जिससे कि जो कॉटन है यहाँ से, रुई जो है ये यहाँ से बाहर ले जाया था। रेलवे लाइन हमारे लिए बनाई गई थी और रॉ मटेरियल को ले जाने के लिए गई थी, नहीं तो समस्तीपुर जंक्शन कभी नहीं होता। कोई समस्तीपुर नहीं आता कि जंक्शन कितने साल से पता नहीं, क्योंकि वहां एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा था, वहां से रॉ मटेरियल जाके शिप से यूरोप जा जाता था, वहां प्रोसेस हो सके, उसके जो प्रोडक्ट बनते थे वापस आते थे। ये जो गैप बना रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बीच में गैप, ये यूरोप को रीच करते गया और इंडिया रीच पुअर होते गया। 1800 साल से जो डाउन होते गया ब्रिटिश के कारण, लेस देन 2% पर हम आ गए, 20-30% से, कभी इंडिया ज्यादा था कभी चाइना ज्यादा था, और अभी तक अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन 70 साल इंडिपेंडेंस के हुए हैं हम अभी भी उसी सिचुएशन में। तो ये जो 3D प्रिंटिंग, एंटी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जो सेंट्रलाइज मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था इंडस्ट्रियल, उसको अभी डिसेंट्रलाइज कर देगा और कस्टमाइज मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। जॉब्स पर भी काफी इंपैक्ट होगा, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि शायद रोबोट्स आ जाए तो हमारे जॉब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हर एक बार जब नई टेक्नोलॉजी आती है, जब IT इंडस्ट्री आ रही थी 1980-1990 के आसपास, हमारे चीफ मिनिस्टर याद हुआ करते तो बोलते कि IT क्या है, लेकिन अभी वही चीफ मिनिस्टर, वही पॉलिटिशियन IT का सहारा लेते हैं। तो इसके कारण यदि जॉब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो दो होता है कारण, ये तो जॉब शिफ्ट कर जाता है, और जिस IT इंडस्ट्री के कारण हम लोग परेशान थे, इंडिया को उसका इतना बेनिफिट मिला कि सब बच्चे सब कुछ छोड़ के IT इंडस्ट्री। तो क्या ये रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल जो आने वाला है उसके भी ऐसा कुछ होगा कि जॉब शिफ्ट होगा, लेकिन क्या हम जॉब ज्यादा गेन करेंगे या जॉब ज्यादा लूज करेंगे? क्या इसका प्रभाव हमारे ह्यूमन लाइफ पर पड़ेगा कि हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं रहेगा, रोबोट्स हमको बोले कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ इस पृथ्वी से? तो एक कंसेप्ट यूनिवर्सल बेसिक इनकम का सोचा जा रहा है कि इतना चीज सब सस्ता हो जाए कि बोला जाए कि ठीक है, तुमको हम 10,000 रुपया महीना दे देंगे, कुछ काम करने की जरूरत नहीं, काम करोगे तो पैसा मिलेगा और ज्यादा, लेकिन 10,000 तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इस पर बहुत जगह एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इंडिया में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और स्वीडन और जगह भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि क्या हम रोबोट से जो खतरा है जॉब को, उसको काउंटर करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक देते। दूसरा ये सोचा जा रहा है कि क्या वर्क आवर्स कम कर दें, जैसे बहुत जगह एक्सपेरिमेंट हुआ है कि पहले हम लोग 6 दिन काम करते सप्ताह में, फिर 5 दिन हो गया, हो रहा है कि क्या 4 दिन करें, ये भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, या नंबर ऑफ आवर्स कम कर दें, या लोग जॉब शेयर करने लगे। लेकिन इसका क्या प्रभाव हमारे सोशल इंटरेक्शन पर पड़ेगा? जैसे ये जो एनिमल टॉयज हैं, मैं अमेरिका गया था तो एक कैट रखा हुआ था, बिल्ली, उसको आप टच कीजिए तो वो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करेगी, उससे उड़ जाएगी, उसको पेट सहलाइए तो वापस आएगी, मतलब एक बिल्ली की तरह करेगी। अब बहुत सारे लोग समझे कि इसको हम बिल्ली, रियल बिल्ली बहुत इसको ले, और ये लगा मशीन है, लेकिन आप देखिए धीरे धीरे हम लोग एडजस्टमेंट हो जाता है। मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा, मेरे बेटे के यहाँ पर हम लोग 2001 में अर्थक्वेक में गुजरात में थे, मेरी पुरानी फादर की गाड़ी थी, बेहतर गाड़ी बहुत पुरानी थी, एक बार गाड़ी थी, तो मेरे फादर ने रिटायरमेंट बाद कहा कि इसको ले जा तुम, बहुत पुरानी हो गई थी, फिर भी हम लोग 1-2 साल के बाद रिटायरमेंट ले गए। बहुत पुरानी गाड़ी थी, मेरे वाइफ हरदम कंप्लेन करती थी इसको डिस्पोजल करो, और कलकत्ता से गांधीनगर चले गए गुजरात, गाड़ी भी चली गई साथ में, फिर वो हरदम बोलते थे नहीं ये खराब है, इसको जल्दी डिस्पोज करो। एक दिन उसने जाकर खरीद लिया दूसरी का नई गाड़ी, ये तुम नहीं खरीदो तुम नहीं जाते, तो शी वाज सो फेड अप। पहला ट्रिप उस गाड़ी का, जो नई गाड़ी खरीदी की, उसका हम लोग माउंट आबू जाने लगे 26 जनवरी 2001 को, रिपब्लिक डे था। उसी समय अर्थक्वेक आ गया, हम लोग रास्ते में थे तो पता ही चला कि अर्थक्वेक आया नहीं क्या। जब लोग माउंट आबू पहुंचे तो पता चला, 2 दिन बाद हम लोग वापस आए। आने के बाद पड़ोसियों ने कहा कि आप लोग घर में मत सोइए, आप लोग टेंट में सोइए, टेंट लगा हुआ है। और गुजरात में ये था कि सबने टेंट हाउस से फ्री दे दिया था, ये दिल्ली रहता तो शायद 10 गुना चार्ज करता है, फ्री दे दिया था। हम लोग उसमें 2 दिन सोए। फिर हमारे पास 2 गाड़ी थी, एक पुरानी एक नई, तो मैं और मेरी बेटी और मेरी वाइफ हम लोग तीनों गाड़ी में, ठंडे का मौसम थोड़ा सा था तो रजाई तो उसमें लगते थे, और वो ट्रेन से बार बार ले जाना ऐसे मुश्किल होता था, तो उसमें 1 महीना लगभग हम लोग गाड़ी में बिताए। उसके बाद आप सरप्राइज होइएगा कि जब मैंने कहा ठीक है हम लोग वापस करने आ गए हैं, गाड़ी को बेचते तो वो मना कर देंगे कीमत एम्बेसडर को कि
वो लग गया कि ये तो हमारे लिए बचाया जीवन हो गया। इसी तरह से 1 महीने के बाद हमने उसको डिस्पोज ऑफ किया और उस पर एक जिसने खरीदा उसने एक जूते वाले बेचने वाले को दे दिया बेंच पर। वो ऊपर में जूता रखता था, ऊपर में जाके सड़क के किनारे बेचता था, जिससे हम लोग चला गाड़ी पर लगे। और हम लोग जो ऑफिस जाते थे, मैं और वाइफ दोनों पीते थे, मेरी वाइफ हरदम देखती थी गाड़ी है कि नहीं है तो परेशान हो जाती थी कि पता करो क्या हुआ। तो ऐसा चीज जो कि एक ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करेगा, उससे तो हम बहुत और आसानी से अटैच हो जाए। तो ये संभावना है कि हमारा सोशल इंटरेक्शन जो ह्यूमन सोशल इंटरेक्शन है, उससे बदलकर ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन आगे बढ़ जाए। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ह्यूमन लाइफ पर? क्या ये मैरिज सिस्टम रहेगा? क्या बच्चे होंगे? ऑलरेडी बहुत सारी कंट्री में परेशानी हो रही है। साउथ कोरिया बहुत डेवलप कर गया, 30-40 साल पहले इंडिया की तरफ था। वहां पर लोग शादी नहीं करना चाह रहे, शादी करते तो बच्चे नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि बच्चे को पालना बहुत एक्सपेंसिव हो गया। तो बहुत सारी जो सोशल हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या इसके जरिए सॉल्व हो जाएगी या उसका समस्या भी आ जाएगी? इसके अलावा बच्चा पैदा रोबोट नहीं कर देगा। नहीं। और आपको कहीं जाना है तो उसको बंद करके चले गए, फिर आगे वापस चले गए, कुछ नहीं मांगे। तो देखिए, एक तो यहाँ पर संपूर्ण आगे तो अब ये है कि ऐसे रोबोट्स यदि हमारे लाइफ में आ गए तो एथिकल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हमको ह्यूमन राइट्स देना पड़ेगा या वो हमको ह्यूमन राइट देंगे? जो वो कैप्चर कर लेते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं, तो बोलेगा अच्छा ठीक है, सोचते हैं इस आदमी को ह्यूमन राइट दें कि नहीं दें। अभी तो हम सोचते हैं कि रोबोट के देने, लेकिन उल्टा भी हो सकता है। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था शुरू में कि डू वी हैव राइट टू डिस्ट्रॉय रोबोट, जो कि सेल्फ अवेयर है, जैसे हम बच्चे को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, उसी तरह तो क्या इंडिया में ऐसी लॉ लाने की जरूरत है? इसलिए हमने प्रशांत भूषण को बुलाया था, क्योंकि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और ऑफ कोर्स फेमस लॉयर हैं। मैंने कहा कि आपका इस पर क्या विचार है? फॉर्चुनेटली उन्होंने मुझको जब पहली बार मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने फोन कॉल मुझको वापस किया और कहा कि मुझको बहुत इंटरेस्ट है इसमें, मैं जरूर आऊँगा। क्योंकि मैंने साइंस फिक्शन बहुत इंटरेस्ट है, मैंने किताब भी साइंस फिक्शन लिखी थी, जिसको मैंने पब्लिश नहीं किया, तो मैं जरूर तो ही के। और आप सरप्राइज होके देखिए, जिनका भी भाषण रिकॉर्ड किया हुआ है हमने, कि किसी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट को हमने बुलाया था, उन लोगों ने नहीं सोचा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट नहीं है। मतलब ही वाज नॉट लाइक ए लॉयर, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट की तरह बात कर रहे थे और बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। मैं इस पर टाइम नहीं है, लेकिन इस तरह से जो एक और चीज हो रहा है, जैसे कि जीन एडिटिंग आ रही है, उसके कारण ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ इवॉल्व कर सकता है इनटू अ सुपर ह्यूमन बीइंग। तो यदि रोबोट से हमको बैलेंस करना है तो हमको भी आगे आना पड़ेगा। अब उसका क्या इम्प्लीकेशन हो सका, मैं ये सब जो बोल रहा हूँ बेसिकली फूड फॉर थॉट है, ये कोई इसका क्वेश्चन तो आंसर नहीं है इसका। लेकिन जैसे ये मैं दिखाता हूँ, ये सज्जन है जिनके हाथ कट गए, इन्होंने प्रोस्थेटिक हैंड के बदले में एक टैटूइंग मशीन लिया, क्योंकि वो टैटूइंग प्रोफेशन था उनका। तो ह्यूमन बॉडी और जो मशीन है ये कंबाइन कर रहा है। ये सज्जन देखिए, इनके ड्रोन के साथ, तो अगेन बॉडी और मशीन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये सज्जन एक्सोस्केलेटन पहन के इतना ज्यादा वजन उठा पा रहे हैं, जिससे हमारे हमको लगता है कि ये रियल है, ये कोई इमेजिनरी पिक्चर नहीं है, रियल। तो जैसे कुली हमारे होते हैं, उनको क्या हमेशा दे दें जो कि 8 घंटे तक ये चलता है बैटरी पर, वो भारी वजन उठा लेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे जो सोल्जर्स हैं जिनको बहुत डिफिकल्ट ट्रेन करना पड़ता है, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा भी चीज आ गया है जो कि आप पहन लीजिए और आप इतना दौड़िएगा तेज से कि आपके पैर पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी कैपेबिलिटी को मशीन जब बढ़ाने लगेगी तो हम तो इसको एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, करते ही हैं। तो मैं एंड में ये कहना चाहूँ कि एक बहुत पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर अभी हैं जहाँ की ह्यूमन स्पीसीज को खतरा भी है और बहुत आगे बढ़ने की संभावनाएं भी हैं, और संभावनाएं ये भी हैं कि पृथ्वी से बाहर निकल जाएंगे, सुपर इंटेलिजेंट बन जाएंगे और मैन और मशीन जो है मर्ज कर जाएगा, रोबोट्स और ह्यूमन बीइंग्स मर्ज कर जाएंगे और एक नई स्पीसीज डेवलप कर जाएगा। बस इसी पर मैं रुकना चाहूँगा।
शायद वो जैसे आपने कहा कि वो ब्रेन से रिलेटेड क्वेरी है, should I speak or not? हाँ बोलिए, मैं ब्रेन एक्सपर्ट नहीं लेकिन प्रयास करूंगा। इसका क्या मतलब उससे ये है कि साइनेप्सिस के बारे में जो आपने कहा, तो जैसा जितना आपने जानकारी, हम भी उसके एक्सपर्ट नहीं है, पढ़ने के लिए पता चला कि जो ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और उसका क्लेफ्ट होता है, क्लेफ्ट में वो साइनेप्स और उसके बीच में क्लेफ्ट होता है साइनेप्सिस के बीच में, वही जो है सो मेमोरी का स्टोरेज पॉइंट होता है। जितना आप समझ पा रहे हैं, जितना आप जान पा रहे हैं, if I'm wrong, I'm subject to correction. तो क्या इसको डेवलप करने का कुछ इस तरह का कोई मेमोरी को डेवलप करना? हाँ, अच्छा, मैंने बताया नहीं, एक्चुअली वो भी मैं टॉक देता हूँ तो बताता हूँ कि ये आ रहा है कि आप एक पेन ड्राइव मेमोरी में डाल दीजिए और मेमोरी आप एक्सटेंड कर दीजिए, ये बहुत जल्दी आने वही पर जाना चाहता हूं। प्रोस्थेटिक मेमोरी बच्चों के लिए इस बात को मैंने स्पीच किया कि हम जब बच्चे थे, व्हेन आई हैपेंड टू बी अ चाइल्ड लाइक दिस, तो मेरे दिमाग में बात खुराफात के रूप में आती थी कि कोई ऐसी दवा है क्या, इसको खा लें तो हम टॉप कर जाए, फर्स्ट कर जाए, ये कर जाए, बताइए ना। तो एक्चुअली तो अब वो धीरे-धीरे करके आज की तारीख में हम इसको जाने की योगा करने से या कंसंट्रेशन करने से, तो एक तो बताया मैंने सुपर ब्रेन योगा बताया, सुपर ब्रेन योगा बताया, दूसरा कि मैंने यहाँ नहीं बताया, मैं 2 साल पहले मैं टॉक किया था, यहाँ पे मैंने किया है। इनर ऑर्गन को क्लीन करने से, लिवर, किडनी, कोलन और गॉल ब्लैडर क्लीन करने से भी मेमोरी काफी इंप्रूव कर जाती है, मेमोरी और भी ब्रेन फंक्शन, पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है। मैंने अपने भी एक्सपेरिमेंट किया, अपने ऊपर भी किया, और यहाँ पर काफी लोग हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है और बहुत सारे केस स्टडीज हैं जिसमें इसको फिर से बोल दूं, फिर से बोल हाँ, रेफरेंस के साथ। चूंकि अतिथि ने कहा तो बोलना पड़ेगा। ये लगभग 5 साल पहले, 4.5 साल पहले की बात है, मुझको गॉल ब्लैडर स्टोन था, उसके कारण पेन हुआ, गॉल स्टोन पेन। तो यदि डॉक्टर साहब है यहाँ पर, उनके पास में जाता तो नॉर्मली गॉल ब्लैडर को सर्जरी करके गॉल ब्लैडर निकाल दिया, और ये समझा जाता है कि गॉल ब्लैडर ठीक है, इसको हटा सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, और डायबिटीज होगा तो एसेंशली ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मैंने फिर कहा कि यार इसकी क्या जरूरत है सर्जरी करने की, इंटरनेट पर देखें, बाई चांस मुझको थोड़ा सा टाइम मिल गया था, चल जाना। तो मैंने एक जर्मन की किताब थी, एंड्रेस बॉयड की किताब, वो इंटरनेट पर मिली मुझको। वो बोला कि 6 साल में मुझसे बहुत बीमार रहता था, जर्मनी में कोई हेल्प नहीं कर पाता था, होते होते उसने अपने हाथ में पढ़ना शुरू किया, 13-14 साल से डाइट न्यूट्रिशन के बारे में। 21 साल की उम्र में वो इंडिया आया आयुर्वेद सीखने के लिए। उसके बाद आयुर्वेद सीखकर उसने अपने आप को पूरा हेल्थी किया। उसके बाद उसने पूरा जीवन अपने आयुर्वेद पर डिवोट कर दिया। अब जर्मनी से अमेरिका चला गया, 40-45 साल तक, 2-3 साल तक, जब 60-65 ईयर्स की एज उसका डेथ हुआ है, तब तक वो उसने पूरा इस पर रिसर्च किया, आयुर्वेद पर बहुत सारी किताबें लिखी। उसी की एक किताब हमने पढ़ी, लीवर एंड गॉल ब्लैडर मिरेकल फ्लश। उसको मैंने पढ़ा और उसके प्रोसेस समझा कि कैसे स्टोन को गॉल ब्लैडर से निकाल सकते हैं विदाउट सर्जरी। किसी को बोलता हो तो लोग मुझको तुम पागल हो। तो मैं डॉक्टर के पास जब गया तो उन्होंने कहा कि सब मत करो, परेशानी में फंस जाओगे। लेकिन मैंने जब पढ़ा और थैंक्स टू इंटरनेट, यूट्यूब सब में देखा एक्सपीरियंसेस, तो आई सेटिस्फाइड माई सेल्फ, मुझको लगा कि मैं कर सकता हूँ, और थोड़ा सा मैं समझ भी क्या हो रहा है उसमें। और मैंने किया और अल्ट्रासाउंड करके चेक भी किया कि गॉल ब्लैडर स्टोन ठीक है। मेरी वाइफ बिलीव नहीं करती थी, तो उसको अल्ट्रासाउंड दिखाया तो सी ऑल्सो बिलीव। इनफैक्ट ऐसा हुआ कि उसको भी हुआ, उसने भी किया। जब मैं सक्सेसफुल हुआ तो मैंने उस किताब को ढंग से पढ़ी तो देखा कि बहुत सारी 2 पेज में लिस्ट किया वो किस किस बीमारी में वो हेल्प कर सकता है। तो फिर मैंने इसको फैलाना शुरू किया सोशल मीडिया से, जिससे जैसे अभी बोल रहा हूँ बता दिया लोगों को। तो काफ़ी लोगों ने करना शुरू किया, कोई, लेकिन कुछ मिराकल केसेस में, एक केस मैं बताना चाहूँगा। एक लेडी थी, 15 उसको लगभग 40 साल की थी, 15 साल को सीवियर मेंटल डिसऑर्डर था, इंसोम्निया 7 से 10 दिन नहीं सो पाती थी, सुसाइडल टेंडेंसी, मेमोरी रिटेंशन नहीं था, सीए का एग्जाम देना चाहती थी, मई और नवंबर एग्जाम होता है, 2 बार फॉर्म भरती थी, 15 साल उसने 30 फॉर्म भरे। लेकिन बोली कि मुझको कि वो पढ़ती थी लेकिन समझती थी कि याद नहीं, जो आपकी मेमोरी की बात, याद नहीं रहता, एकदम नहीं याद रहता था। तो अचानक वो किसी ने मेरे पास भेजा कि ब्रेन एक्सपर्ट है, ये कुछ कर देंगे। मैं तो ब्रेन एक्सपर्ट हूँ नहीं,
मैं उसको एक दूसरी टेक्निक से हेल्प करता, बाइनोमियल बीट करके, ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट करके, उसमें नहीं जाऊँगा। बाई चांस उससे थोड़ा हेल्प हो रहा था उसको। फिर मार्च 2012 की बात है, मार्च 2013 की बात है। जैसे मैंने सबको बताता था, उसको भी बताया कि ये जो इनर ऑर्गन्स की क्लीनिंग है ये तुम भी कर दो। सरप्राइजिंगली उसने 3 वीक बाद मुझको कहा कि उसने क्लीन किया और वो क्योर होगी, मेमोरी सब कुछ वापस है, एग्जाम देने लगी, उसने किताब लिखी है सब। तो यहाँ पर हमने वर्कशॉप किया था 2013 में जून में यहाँ पर, और तब उसको समझ आया कि इनर ऑर्गन्स और ये जो ब्रेन है और पूरी बॉडी जो होलिस्टिक सिस्टम, तो उसमें फूड, बॉडी और माइंड को एक इंटीग्रल प्रोसेस बनाना चाहिए लर्निंग के लिए। और इस स्कूल में स्टार्ट किया था हम लोगों ने उस पर डिस्कशन, और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कैसे इसको इंटीग्रेट करें, जो कि हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज, मॉडर्न साइंस दोनों को कंबाइन करके ह्यूमन लर्निंग को जो है मैक्सिमाइज करें। ब्रेन अलग होगा लेकिन गिवन द सेम ब्रेन उसमें हम मैक्सिमाइज करें, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो लोग करना चाहते हैं प्रोसेस वो देख सकते हैं, और बहुत लोगों को बहुत सारे कंडीशन से फायदा होगा, इसमें टाइम नहीं। एक सवाल मेरा है, एक सामान्य आदमी जो है अपने ब्रेन का कितना प्रतिशत भाग जो है इस्तेमाल करता है? जैसे आइंस्टीन के बारे में कहा गया है कि उनका ब्रेन जो है प्रिजर्व करके रखा गया और पाया गया कि वो 1% का 20वां हिस्सा ही इस्तेमाल किए। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। नहीं, इस पर मैं प्रकाश नहीं, आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप लोग बताइए, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं तो जो लोग डिसेबिलिटी के कारण उनको हेल्प करने के लिए, मैं ब्रेन का एक्सपर्ट नहीं। लेकिन जो मैं संभावनाएं देख रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके जरिए हम ब्रेन का उपयोग भी बहुत बढ़ा सकेंगे। जैसे हम समझ रहे, जैसे उस लेडी के वो एक पार्ट ऑफ ब्रेन को सिमुलेट करके ऑन ऑफ कर दिया जाता है, तो जैसे समझ रहे हैं। और अभी सिमुलेशन की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग, इसके डायलिसिस के बढ़ रहे हैं, ब्रेन ओबामा इनिशिएटिव, ओबामा ब्रेन इनिशिएटिव है, ऐसे बहुत सारे यूरोपियन है जो न्यूरॉन लेवल तक मूविंग ह्यूमन बीइंग में भी धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं। एनिमल्स में तो होने लगा छोटे छोटे में, तो ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग 10-15 साल में इतनी बढ़ जाएगी कि ये सब भी इशूज। एक क्या पूछना है? सर मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे पुराने समय में जब लोगों की सोच में जो कुछ आया, जैसे किसी के समय में वेद आया तो वेद को लिखित रूप में है, लेकिन जब एक चीज आप कर रहे होते हैं उसी टाइम में बहुत सारी बातें ब्रेन के अंदर चल रही होती है। मान लो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, मैं किसी से झगड़ा कर रहा हूँ, उस टाइम में और भी चीजें चल रही होती, तो क्या ऐसा कभी कोई प्रोसेस डेवलप हो सकता है कि हम ब्रेन के उन सारी चीजों को प्रिजर्व कर सकें और कभी भी एक्सेस कर सकें? अब तो जो एक्सपीरियंस रावण बन जाएगा उसके बाद 10 ब्रेन एक साथ काम करेगा। ऐसी संभावनाएं देखी जा रही कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस और जो मेमोरीज बन रहे हैं वो सब प्रिजर्व होकर कंप्यूटर में चली जाएं, और फिर वो ब्रेन हमारा हो जाएगा और हम खत्म हो जाएंगे। एक्चुअली सर होलोग्राफिक मॉडल पर प्रिलिमिनरी वर्क चल रहा है, तो आई थिंक इन कोर्स ऑफ टाइम वी मे एक्सपेक्ट टू गेट सम टेक्निक्स। नहीं, तो वही संभावना है काफी, और ये बहुत एक्साइटिंग पीरियड है, और अगला 2-3 डिकेड जो है उसमें काफी कुछ होने की संभावना है। और ये भी बोलूं कि जिस टेक्नोलॉजी को होने में 100 साल लगता था वो 10 साल में हो रहा है। हम लोग, मैं अभी जो ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा हूँ टाइफैक, ये इंडिया का टेक्नोलॉजी थिंक टैंक, और हमारे काम है कि अगले 15-20 साल 30 साल में क्या होने वाली है टेक्नोलॉजी में, उसके बारे में सोचना। मैंने बताया नहीं, टेक्नोलॉजी विजन 2035 जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी विजन 2035 डॉक्यूमेंट हम लोगों ने रिलीज की है, लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर रिलीज किया। उसमें हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो कि आगे आने वाली है 15-20 साल, उसको हमने एक ग्रुप रखा टेक्नोलॉजी इमेजिनेशन। हमने सोचा कि होता है 20 साल में आए नहीं आए। सरप्राइजिंग, जब किताब हम लिख रहे थे 2 साल, उसके अंदर भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी होने लगी। एक मैंने मेंशन किया हाइपरलूप, वो देखिए हाइपरलूप उसमें मेंशन है। अब हाइपरलूप आजकल देखेंगे इंडिया में डेली न्यूज पेपर आ रहा है कि यह बेंगलोर मद्रास के बीच में होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा, यूरोप में ऑलरेडी चेकोस्लोवाकिया से साइन हुआ एग्रीमेंट। तो टेक्नोलॉजी इज मूविंग एट मच फास्टर रेट देन वी एक्सपेक्ट। दूसरा ये टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन भी बहुत फास्ट हो रहा है, बट इसका एक इफेक्ट ये है कि टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेसेंस भी बहुत हाई हो रहा है। पेजर आपको याद होगा, पता नहीं कब आया कब चला गया, मोबाइल बना के उसको खत्म कर दिया। तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट स्पीड से मूव रही है कि अभी बहुत कुछ बोलना मुश्किल है। तो संभावनाएं काफ़ी हैं, और जो जिस तरह की चीज़ों की मैंने बात की है इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है। मैं इसी पर रुक जाऊँगा।
इससे पहले कि मैं सिर्फ एक बात की ओर आपको ध्यान आकृष्ट करा दूं, अभी बिहार का ब्रेन डेवलपमेंट के साथ जो बता रहे थे बहुत क्लोज रिलेशनशिप, मिथिला का जो जन्म हुआ है, मिथिला का नाम था,